So good morning, students. We are studying the grinding operations, which is performed on grinding machine. So as I told you that grinding is one of the machining operations in which some amount of material is removed in the form of chips. Since the amount of material removed in this case is very, very small, and by grinding we get good surface finish over the surface. That's why grinding is considered as surface finishing operations also. So in the last class, we studied about definition of the grinding, what is a grinding wheel, and how machining takes place by the grinding. When we talk about grinding process, the grinding can be classified in two ways, according to surface finish obtained and according to the surface generated. There is some difference between these two. The first is according to the surface finish obtained. So whenever we perform grinding operation on a workpiece, then some kind of surface finish is obtained, whether it is a cylindrical workpiece, a flat surface, or contoured surface. Okay, the surface may be rough or it may be finished. Accordingly, that the grinding operations can be classified as roughing or rough grinding operation and finish or precision grinding operation. ठीक है ना? तो जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो रहा है या तो वो रफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो गया या रफिंग ऑपरेशन होगा, और इट कैन बी अ फिनिश ग्राइंडिंग ऑपरेशन और प्रेसिजन ग्राइंडिंग ऑपरेशन आल्सो. Now second classification is according to the surface generated. In this case you can see the surface generated or machined is cylindrical. This grinding wheel is going to finish the external surface of a cylindrical workpiece. That's why this grinding is known as cylindrical grinding. So from cylindrical grinding or by using cylindrical grinding, we can generate a cylindrical surface which can be external or which can be internal also. ठीक है ना? हम एक्सटर्नल सरफेस को भी ग्राइंड कर सकते हैं जो कि सिलेंड्रिकल होगी. उसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई एक बोर है या वर्कपीस में कोई होल है जिसको हम फिनिश करना चाहते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं और वो ग्राइंडिंग भी क्या कहलाएगी? सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग. सेकेंड इज इंटरनल ग्राइंडिंग. So in the cylindrical grinding concerns about the external cylindrical surface. This can be cylindrical, this can be conical, this can be contoured also. Similarly, when we consider this internal grinding operations, so in this grinding operation, internal surfaces are finished, which may be cylindrical, conical, contoured or other kind of surfaces also. ठीक है ना? तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि ये एक्सटर्नल सरफेस की बात करता है और यहाँ पर ये इंटरनल सरफेस फिनिश की बात करता है. थर्ड इज सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन और सरफेस ग्राइंडिंग. सो बेसिकली इन दिस काइंड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन द फ्लैट सरफेसेस ऑफ अ वर्कपीस इज मशीन. ठीक है ना? फ्लैट, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी एट एन एंगल और इट कैन बी कंटूर्ड ऑल्सो. तो इसमें हम सिलेंड्रिकल सरफेस मशीन कर रहे होते हैं. इंटरनल ग्राइंडिंग से हम इंटरनल सरफेस मशीन कर रहे होते हैं और जो फ्लैट सरफेस हैं, एक्सटर्नल सरफेस हैं, उनको मशीनिंग के लिए हमारे पास सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है. फोर्थ वन इज फॉर्म ग्राइंडिंग ऑपरेशन. तो फॉर्म ग्राइंडिंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसमें कोई स्पेशल प्रकार की सरफेस यहाँ पर जनरेट होती है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सरफेस हम मशीन करते हैं, सपोज वी हैव प्रोड्यूस्ड अ थ्रेड ऑन अ लेथ मशीन, तो थ्रेड की फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पे ग्राइंडिंग करा सकते हैं और वो ग्राइंडिंग कहलाएगी थ्रेड ग्राइंडिंग. Similarly, we can make a gear on a milling machine and then gear can be finished on the grinding machine. मतलब हमने गियर को बनाया था कहाँ पे? मिलिंग मशीन पे, मिलिंग में ऑपरेशन के द्वारा, और उसको हम फिनिश करा रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन के द्वारा. तो इस प्रकार से जो सरफेस ऑब्टेन्ड होती हैं या सरफेस जनरेट होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चार प्रकार की ग्राइंडिंग ऑपरेशंस होते हैं: सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग एंड फॉर्म ग्राइंडिंग. ठीक है? तो this is a broad classification of these two types of grinding processes according to the surface finish obtained, can be classified as rough grinding and finish grinding, and according to the surface generated can be classified as cylindrical, internal, surface or form grinding. Okay, यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो. कोई डाउट? फॉर्म ग्राइंडिंग मतलब सर उसमें कोई जनरेट, मतलब हम लोग ही जनरेट करते हैं उसमें ग्राइंडिंग? नहीं, जनरेट हम सभी कुछ करते हैं. फॉर्म ग्राइंडिंग का मतलब होता है ये स्पेशल पर्पस ग्राइंड कर दो, ग्राइंडिंग समझ लो आप इसको यहाँ पे. ठीक है? स्पेशल पर्पस ग्राइंडिंग में क्या होता है
कि जो सिंपल सरफेसेस होती हैं वो मशीन ना होके हम कुछ अलग प्रकार की सरफेस मशीन कराते हैं या ग्राइंड कराते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि हमने मिलिंग मशीन पे एक क्या बना लिया, गियर बना लिया। सपोज वो स्पर गियर है, ठीक है, या हेलिकल गियर है। अब उसको जब हम फिनिश करने जाएंगे तो कहाँ फिनिश करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन पे फिनिश करेंगे। तो वो जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन होगा वो कहला सकता है फॉर्म ग्राइंडिंग, वो कहला सकता है गियर ग्राइंडिंग। यदि हम थ्रेड को ग्राइंड करने जा रहे हैं तो वो कहला सकता है थ्रेड ग्राइंडिंग ऑल्सो। अभी आपको इसकी जो सरफेस दिख रही है ये फ्लैट है यहाँ पे, ठीक है ना, इट है सर्टेन डायमीटर। तो इसको यदि हमें कुछ कर्व्ड कंटूर यहाँ पे देना चाहते हैं तो उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए हम इसकी ग्राइंडिंग व्हील की शेप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप एक सेमी सिलेंड्रिकल ग्रूव यहाँ पे बनाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन इसके ऊपर सरफेस पर होना चाहिए। अभी जो सरफेस फ्लैट थी वो कैसी होनी चाहिए, सेमी सर्कुलर का ग्रूव यहाँ पर माने फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए। तो उसको भी हम यहाँ पे फॉर्म ग्राइंडिंग यहाँ पे बोल सकते हैं। और कोई डाउट? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, कॉनिकल भी हो सकती है, कंटूर भी हो सकती है। इंटरनल ग्राइंडिंग का मतलब होगा इंटरनल सरफेस को ग्राइंड कराना, और सरफेस ग्राइंडिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल सरफेस को जो नॉर्मली फ्लैट होती है उसको ग्राइंड कराना। फॉर्म ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि हम कोई स्पेशल टाइप का कंटूर वहाँ पर मशीन करने जा रहे हैं। हम गियर को भी फिनिश कर सकते हैं और मशीन कर सकते हैं, थ्रेड को भी फिनिश कर सकते हैं, मशीन कर सकते हैं, कैम को भी फिनिश करके मशीन कर सकते हैं, लाइक दैट। ठीक, और कोई डाउट? नो सर। आगे चलते हैं। नाउ वी कम टू सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। Cylindrical grinding is used for machining of cylinders, rods and other similar axis symmetric workpieces, work surfaces. तो सिलेंडर हो सकता है, रॉड हो सकता है। ये एक सेम डायमीटर, सिलेंडर का मतलब होता है, रॉड का मतलब होता है हैविंग सेम डायमीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ। लेकिन यदि भी कॉनिकल बोलते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, वो चेंज हो सकता है मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम ऑल्सो। तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग से हम एक्शन सरफेस मशीन करेंगे जो कि सिलेंडर हो सकती है, कॉनिकल हो सकती है, कंटूर हो सकती है। अब इस केस में जो मशीनिंग होती है उसमें 4 प्रकार की मोशन इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आता है वर्क पीस रेस्ट बिटवीन 2 सेंटर्स एंड रोटेट्स इन 1 डायरेक्शन। ठीक है ना, वर्क पीस को हम सेंटर्स के बीच में माउंट करते हैं। तो इसकी जो मशीन होगी सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग की दैट इज सिमिलर टू अ लेथ मशीन। लेथ मशीन आपने पढ़ा है, उसमें देखा होगा कि वहाँ पर 2 सेंटर्स होते हैं, वन इज नोन एज लाइव सेंटर, अनदर इज नोन एज डेड सेंटर। लाइव सेंटर लगा होता है हेड स्टॉक पे, डेड सेंटर लगा होता है टेल स्टॉक पे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर वर्कपीस को माउंट करेंगे। तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होगी दैट विल बी सिमिलर टू अ लेथ मशीन। ठीक, लेथ मशीन जैसी हमारा सिलिंड्रिकल ग्राइंडर होगा। वर्कपीस को हम माउंट करेंगे सेंटर्स के बीच में एंड देन वर्कपीस विल बी गिवन रोटरी मोशन। ठीक है, सो इट विल गिव रोटेट इन 1 डायरेक्शन। ग्राइंडिंग व्हील भी एक अलग से ग्राइंडिंग व्हील हेड पर माउंट होगा, या जिसको सिर्फ व्हील हेड बोलते हैं, व्हील हेड, WHEELHEAD। और ये भी रोटेट करेगा नॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द वर्क पीस। सो रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। फिर क्या करता है, वी हैव टू गिव डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट देने के लिए नॉर्मली हम ग्राइंडिंग व्हील को वर्क पीस की तरफ मूव करते हैं, और ये मोशन कहलाता है इनफीड मोशन। ठीक है, तो मैंने जब इसके पहले आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई थी, देखो इसमें क्या लिखा है। प्राइमरी मोशन इज द रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, सेकेंडरी मोशन इज द मोशन ऑफ द वर्क पीस, वो रोटेट करेगा, या कुछ और दूसरी मोशन यहाँ पर हो सकती है। डेप्थ ऑफ कट इज नोन एज इनफीड। तो इनफीड एक्चुअली जो फिगर है दिस इज फिगर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे हो कि जो इनफीड है दैट इज बीन गिवन टू द ग्राइंडिंग व्हील। सो ग्राइंडिंग व्हील इज मूव टुवर्ड्स द वर्क पीस। जब ये वर्क पीस की तरफ आता है, यहाँ पे कहीं आता है, तो इस केस में हल्की डेप्थ ऑफ कट ले लेता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वर्क पीस को जो कि रोटेट हो रहा है उसको भी हम रेसिप्रोकेट करा सकते हैं। ठीक है, सो द वर्क पीस रेस्ट बिटवीन 2 सेंटर्स एंड रोटेट्स इन 1 डायरेक्शन while the grinding wheel approaches to the workpiece and rotates in the opposite direction. समझ में आ गया? In this way a cylindrical grinder works much like a lathe. बिल्कुल लेथ जैसा ऑपरेशन यहाँ हो जाता है, जैसा वर्कपीस वहाँ पर रोटेट करता है, ठीक है, ऐसा ही वर्कपीस यहाँ पे भी रोटेट कर रहा है। बट देयर इज डिफरेंस इन द कटिंग टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग एज वेल एज इन टर्निंग। टर्निंग में हम एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग में हम एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं जिसको ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं, और वो ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पर रोटेट होता रहता है। In addition to the rotating the workpiece rapidly in opposite to the grinding wheel, both the wheel and the table on which the workpiece rests
अंडरगो वेरियस मूवमेंट। अब जो वेरियस मूवमेंट है वो कौन कौन से हैं? दो मूवमेंट है कि ग्राइंडिंग व्हील की इनफीड मोशन होगी, ठीक है, और जो वर्कपीस रहेगा उसका टू एंड फ्रो मोशन होगा। अपन इस फिगर को फिर से फोकस करते हैं। देखो, वर्कपीस इज हैविंग रोटरी मोशन, grinding wheel is having rotary motion, grinding wheel is given in feet to take proper depth of cut, and then this workpiece is having to and fro motion, तभी जाके इसकी थ्रू आउट लेंथ में यहाँ पे मशीनिंग हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। सर ये बैक और फोर्थ मोशन थोड़ा सा जो नहीं आएगा। देखो क्या होगा, जैसे मान लो हमें इसका डायमीटर 2 mm कम करना है। अब यहाँ पे हम जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं वो ले सकते हैं 0.5 mm। तो जब ये डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm आएगी तो इसका डायमीटर एक पास में 1 mm रिड्यूस होगा। अरे बात समझ में नहीं आ रही? ये हमने जितनी डेप्थ ऑफ कट ली, ठीक है, उसका दोगुना का इसका डायमीटर कम हो जाएगा। यदि हमने डेप्थ ऑफ कट ली 1 mm तो डायमीटर 2 mm से रिड्यूस होगा। यदि हमने डेप्थ ऑफ कट ली 2 mm तो डायमीटर 4 mm से रिड्यूस होगा यहाँ पर। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक वर्क पीस है जिसमें हमें उसका डायमीटर थ्रू आउट लेंथ 2 mm रिड्यूस करना था, लेकिन इसकी मशीनिंग कंडीशन ऐसी है कि हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट इसमें 0.5 mm ही ले सकते हैं। तो जब 0.5 mm इसमें डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो एक बार में जो डायमीटर रिड्यूस होगा कितना होगा? 1 mm। और चूंकि हम यहाँ पर 2 mm डायमीटर रिड्यूस करना चाह रहे थे तो हमें यहाँ पे कितने पास लेने पड़ेंगे? 2 पास लेने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? हाँ या ना? ठीक है, तो उस केस में एक मोशन इसकी हो जाएगी जो कि होगी इनफीड, ये रोटेट भी हो रहा है, इसके बाद इसको इनफीड दी गई है। अब चूंकि हम इसमें थ्रू आउट लेंथ इसकी मशीनिंग करनी है तो इस वर्कपीस को बैक एंड फोर्थ का मतलब ये ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करता रहेगा। इनिशियली आपका जो ग्राइंडिंग व्हील तो अपनी जगह पे रोटेट करता रहेगा, ये वर्कपीस का ये एंड इधर होगा, फिर हम इसको धीमे धीमे करके यहाँ पे लाते रहेंगे, फिर इसको डिसएंगेज करेंगे, या तो यहीं से वापस उल्टा स्टार्ट कर सकते हैं, या इस वर्कपीस को इस एंड पे ले जाके और फिर से इसको आगे की तरफ मूव किया जा सकता है। तो ये जो मोशन यहाँ पे इसका हो रहा है वर्कपीस का, दैट इज बैक एंड फोर्थ मोशन, या उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होते हैं। तो एक्चुअली वो रेसिप्रोकेट नहीं रहता है, एक बार जब एक पास कंप्लीट हो गया तो दोबारा हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे और फिर से उसको मूव कराएंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन है या रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? नो सर। नाउ द सिलिंड्रिकल ग्राइंडर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, कैन बी सेंटर टाइप, इट कैन बी सेंटरलेस। अभी हमने जो फिगर देखा, बोलो। हो गए थे सर, ये दोनों हो गए थे, सेंटर टाइप सेंटरलेस हो गया था? हाँ सर। चलो ठीक है, चलो इसका डिफरेंस तो समझा दो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? यस सर। क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है सेंटरलेस सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का? एडवांटेज? चलो मैं फिर से बता देता हूँ। इस फिगर को आप देखो, यहाँ पे यदि ये मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो वर्कपीस की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? इतनी हो सकती है। ये 2 फीट हो, 3 फीट हो, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, वो फिक्स हो गई वहां पर। यदि हमारे पास इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से कोई लंबा वर्कपीस हमारे पास है तो वो इस मशीन पे यहाँ पर मशीन नहीं किया जा सकता है। नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। Actually, this cylindrical grinder is designed for machining or grinding a workpiece having this much length. यदि ये maximum possible है तो हेड स्टॉक अपनी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में होगा, टेल स्टॉक अपनी राइट मोस्ट पोजीशन में होगा, तो उस केस में इस सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो डिटरमिन करती है कि हम एक कितना लंबा वर्कपीस इसमें सक्सेसफुली यहाँ पे मशीन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब यदि ये 4 फीट है तो हम इस सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पर 4 फीट लंबे वर्कपीस को यहाँ पे मशीन कर पाएंगे। हमारे पास यदि 5 फीट लेंथ का वर्कपीस है, 6 फीट लेंथ का वर्कपीस है, तो उसको हम यहाँ पे मशीन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उतना लंबा वर्कपीस इस मशीन पे सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। किस पे? सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि कितने भी लंबे वर्कपीस को यहाँ पे मशीन करें, तो उसके लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं सेंटरलेस सिलिंड्रिकल ग्राइंडर। इसमें क्या होता है कि वर्कपीस को एक्चुअली यहाँ पे एक टेबल अवेलेबल होती है, उस टेबल पर रख दिया जाता है, और जब मशीनिंग हो रही होती है तो ये ब्लेड रेस्ट और रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील के थ्रू ये सपोर्ट होता है। ब्लेड रेस्ट नीचे की तरफ लगी होती है, वो वर्कपीस को नीचे गिरने से बचाती है,
और यहाँ पे एक रेगुलेटिंग व्हील लगा होता है जो इसको रोटेशन प्रोवाइड करता है। किसको रोटेशन प्रोवाइड करता है? वर्क पीस को। ठीक है ना। रेगुलेटिंग व्हील का जो कंस्ट्रक्शन है ये बना होता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड मटेरियल से, जबकि जो ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल हो रहा है मशीनिंग के लिए वो बना होता है मिक्सचर। किसके मिक्सचर से? बॉन्ड एंड अब्रेसिव ग्रेन्स। जो मशीनिंग होती है वो अब्रेसिव ग्रेन्स के द्वारा होती है। अब्रेसिव्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिना और बोरॉन कार्बाइड, डायमंड, ये जो अपन को मिलते हैं नेचुरल वे में या इसको हम आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं लैबोरेटरीज में। तो जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल अब्रेसिव्स होते हैं उनको हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उनका पाउडर तैयार करते हैं और उस पाउडर में हम सेग्रीगेट करते हैं कि पाउडर की लेंथ, पाउडर के जो डायमेंशन है उसके अब्रेसिव के वो कितने माइक्रोन है। ठीक है, वो 30 माइक्रोन का हो सकता है, 50 माइक्रोन का हो सकता है, 100 माइक्रोन का हो सकता है, 500 माइक्रोन का हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, हमारे पास अलग अलग साइज के अब्रेसिव्स होंगे, उन अब्रेसिव्स को हम बॉन्ड मटेरियल में मिक्स करेंगे और ग्राइंडिंग व्हील को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मशीनिंग हो रही होती है, मशीनिंग तो किसके द्वारा हो रही है? ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा। और जो रेगुलेटिंग व्हील है ये वर्कपीस को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और ये डिफ्लेक्शन से अवॉइड बचाता है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्राइंडिंग व्हील कटिंग फोर्स इम्पार्ट करेगा इसके ऊपर तो ये डिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जाएगा। तो इस वर्कपीस को अपनी जगह रेस्ट कराने के लिए यहाँ पे हम रेगुलेटिंग व्हील लगा देते हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन दोनों व्हील का, रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में वर्टिकल मतलब इसमें डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये 10 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस वर्कपीस के ऊपर एक एक्सियल थ्रस्ट लगता है और वर्कपीस अपनी डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली आगे मूव होता रहता है स्लो स्पीड से। ठीक है। तो ये सेंटरलेस सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि वी आर एबल टू मशीन अ वर्कपीस हैविंग एनी लेंथ, वो 10 मीटर का हो, 10 फीट का हो, 20 फीट का हो, उसको हम यहाँ पे सक्सेसफुली मशीन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, चूंकि यहाँ पे सेंटर्स नहीं है तो जब हम सेंटर्स के बीच में वर्कपीस को माउंट करते हैं तो थोड़ा सा एक कम्बरसम प्रोसेस होती है, टेक सम टाइम ऑल्सो। ठीक है ना। और वर्कपीस का जो एक्सिस है दैट शुड कोइंसाइड विद इमेजिनरी सेंटर लाइन, इमेजिनरी सेंटर लाइन। इसमें वो चीज़ जरूरत नहीं पड़ती सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। आपने वर्कपीस को टेबल और ब्लेड रेस्ट के थ्रू सपोर्ट कराया, इसको रेगुलेटिंग व्हील को लगाया और ग्राइंडिंग व्हील को आगे जाके कस दिया और मशीनिंग स्टार्ट कर देते हो। तो इस केस में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर प्लेन, इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर प्लेन और इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर प्लेन, वो सब के सब एक ही लाइन में होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे जरूरी होती है। ठीक, और कोई डाउट? नो सर, पर जैसे जैसे ज्यादा डायमीटर का अगर हम सर जैसे रॉड लेंगे या जो भी है सिलेंडर, तो ज़्यादा डायमीटर का हो, कम डायमीटर का, तो हम रेगुलेटिंग व्हील को इस तरफ और ग्राइंडिंग व्हील को इस तरफ मूव कर सकते हैं, बाद में इसको पास में ले आके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। सर जैसे ये जो नीचे जो सर वर्क रेस्ट लिखा है जो लगा हुआ है पीस, सर इसमें फ्रिक्शन सर मतलब कैसे घूमता होगा सर इस पे? फिर वो ये सिंपली ये माना जाता है कि पॉइंट कांटेक्ट है यहाँ पे, लेकिन एक लाइन कांटेक्ट होता है, कई बार वो सरफेस कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शन तो यहाँ पर रहेगा, हल्का सा फ्रिक्शन रहेगा, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। क्योंकि इसका जो वेट हो रहा है, वेट इसी के ऊपर एक्ट कर रहा है, और जब रोटेट होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। तो सर उससे फिर वो उस पे सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर उससे? बिल्कुल से पड़ता होगा, बिल्कुल से पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगाया जाए। जो सरफेस है यहाँ पे रोलर सपोर्ट, एक और रोलर लग जाए, रोलर लगा दिया तो उसको अवॉइड कर देगा। और कोई डाउट? नहीं सर, बस ये। आगे चलते हैं अपन। फिर आता है अपनी बात इंटरनल ग्राइंडिंग की। तो इंटरनल ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू ग्राइंड इंटरनल सरफेस ऑफ द वर्कपीस। ठीक है। इंटरनल सरफेस को यहाँ पे हम क्या मशीन करने जा रहे हैं। ये सिलिंड्रिकल हो सकती है, कोनिकल हो सकती है, कंटूर्ड हो सकती है, किसी अलग प्रकार की सरफेस यहाँ पे हो सकती है। तो मैंने दो आपको यहाँ पे फिगर दिखाए हुए हैं, एक फिगर है और एक इमेज है एक्चुअल वाली है। ये ग्राइंडिंग व्हील है, दिस इज बीन माउंटेड ऑन जिसको बोला अपन शाफ्ट, ठीक है ना, एंड पे, और ये रोटेट भी करेगा और इसके अलावा अपने इसमें अलॉन्ग डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ मूव यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। जो वर्कपीस रहेगा
वर्कपीस अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। कुछ केसेस में यदि हमने इस प्रकार का अरेंजमेंट लिया, ठीक है, तो वर्कपीस की टू एंड फ्रो मोशन भी यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मोशन यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लेंथ का रिस्ट्रिक्शन है, कुछ उसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पिंडल पे माउंट है आपका ग्राइंडिंग व्हील, तो जितनी स्पिंडल की लेंथ होगी उतने लंबी इंटरनल सरफेस को आप यहाँ पे मशीन कर सकते हो। यदि हमारे इंटरनल सरफेस जिसको मशीन करना है उसकी लेंथ है सपोज 3 फीट, और ये जो क्या बोलते हैं स्पिंडल है इसकी लेंथ है 2 फीट, तो अपन बहुत ज़्यादा लंबे वर्कपीस को यहाँ पर मशीन नहीं, इंटरनल सरफेस को यहाँ पर मशीन नहीं कर सकते। ठीक है। So two types of internal grinders are there: cylindrical internal grinder and centerless internal grinder. Cylindrical internal grinder ये हो गया जो आपको दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको वर्कपीस दिख रहा है, दिस वर्कपीस कैन बी हेल्ड ऑन दिस मशीन एंड रोटेटेड सक्सेसफुली। कई बार हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कास्टिंग्स होती हैं और कास्टिंग में एक होल जो बना हुआ इस प्रकार का उसको मशीन करना चाहते हैं तो पूरी पूरी कास्टिंग को रोटेट कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, कास्टिंग को स्टेशनरी रख देते हैं या उस फोर्जिंग को स्टेशनरी रख देते हैं। और ये जो ग्राइंडिंग व्हील है इट विल हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। इसमें यहाँ पे 3 प्रकार की मोशन होंगी। तो ग्राइंडिंग व्हील के यहाँ पे 3 प्रकार की मोशन होनी चाहिए। एक है रोटरी मोशन, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। एक ये रिवॉल्व करेगा यहाँ पे, इट विल मूव इन दिस इंटरनल पाथ, जिसको बोलते हैं प्लानेटरी मोशन। ठीक है ना, तो इंटरनल सरफेस को मशीन करेगा। और तीसरी होगी ये वाली मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो कई बार ये तीनों के तीनों मोशन ग्राइंडिंग व्हील के पास होती हैं। रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रिवॉल्यूशन ऑफ द दिस ग्राइंडिंग व्हील इन दिस सर्कुलर पाथ, एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। कई बार ग्राइंडिंग व्हील के पास 2 मोशन होती हैं, रोटेशन वाली और रिवॉल्यूशन वाली। और ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट वाली बात है ये किसके पास होती है, वर्कपीस के पास हो सकती है। तो वो कहलाता है प्लानेटरी इंटरनल ग्राइंडर। उस ग्राइंडर का नाम क्या हो जाता है, प्लानेटरी इंटरनल ग्राइंडर। ठीक है। ये भी आपको जो दिख रहा है ये सिलिंड्रिकल है, जिसमें हमने सिलिंड्रिकल ग्राइंडर टाइप की मशीन ली हुई है। वर्कपीस को एक बार कोल्डिंग डिवाइस में माउंट किया, उसको हम रोटेट भी करा रहे होते हैं। यदि हम वर्कपीस को रोटेट नहीं करा पाते हैं तो फिर हमें ग्राइंडिंग व्हील को रोटेशन के अलावा ये प्लानेटरी मोशन भी देनी पड़ती है। ठीक है, और वो मशीन कहलाती है प्लानेटरी इंटरनल ग्राइंडर। फिर तीसरा प्रकार का आ जाएगा इसमें सेंट्रल ग्राइंडर। तो जैसा आपने यहाँ पे देखा कि वी आर एबल टू मशीन अ वर्कपीस ऑफ एनी लेंथ बाय यूजिंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रिंसिपल, उसी प्रकार से हम एक इंटरनल ग्राइंडर को भी यहाँ पे मशीन कर सकते, इंटरनल सरफेस को भी यहाँ पे ग्राइंड कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेंटरलेस। अब उसका फिगर क्या होगा, ये बना हुआ है, दिस इज सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग। पहले इस फिगर को समझो फिर अपन उसका डिटेल समझते हैं। फिगर में ये आपका वर्कपीस है, ठीक है ना। इस वर्कपीस को हमें क्या करना है, इंटरनल सरफेस को यहाँ पे ग्राइंड करना है। ठीक है, ये सपोर्ट रोल है। जो ब्लेड रेस्ट थी, ब्लेड रेस्ट की जब हम क्या पे ले आए, क्या ले आए वहाँ पे, सपोर्ट रोल ले आए। ठीक है, ये रेगुलेटिंग व्हील है, ये प्रेशर रोल है। एक नई चीज़ यहाँ पे आई जिसका नाम लिखा गया है प्रेशर रोल। ठीक है, होगा क्या कि ये जो सपोर्ट रोल है ये इसको नीचे गिरने से बचाएगा, रेगुलेटिंग व्हील इसको रोटेशन प्रोवाइड कराएगा, और प्रेशर रोल इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करके रखेगा जिससे कि अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट ना हो। होता क्या है कि ये जो वर्कपीस है जिसकी एनुलर अपन के यहाँ पे दिख रही है, ये किसी भी लेंथ का है और मशीन कहाँ चल रही होती है, मशीनिंग की छोटे से पोर्शन पर चल रही होती है, और वो मशीनिंग की जो लेंथ रहती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फेज विड्थ ऑफ दिस ग्राइंडिंग व्हील। ये चीज़ समझो आप यहाँ पे कि ग्राइंडिंग व्हील की जितनी फेज विड्थ है उतनी लेंथ वर्कपीस की एक बार में ही मशीन करता रहेगा। ग्राइंडिंग व्हील उतनी लेंथ यहाँ पर मशीन करता रहेगा। यदि इस ग्राइंडिंग व्हील की फेज विड्थ 20 mm है तो ये 20 mm लेंथ के यहाँ पे एक बार में मशीन करता रहेगा। और उस 20 mm मशीन करने के लिए जो रेगुलेटिंग व्हील है, प्रेशर रोल है, सपोर्टिंग रोल है, वो एक उस 20 mm वाले डायमीटर पर भी इसको सपोर्ट करते रहेंगे। अब यदि हमारा वर्कपीस ज़्यादा लंबा है तो हमें इसको मूव कराना पड़ेगा। जब हम इसको मूव कराएंगे तो उस केस में ये डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो डिफ्लेक्ट होने से रोटेट बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रोल लगा देते हैं जो कि प्रेशर रोल का काम करता है। ये वर्कपीस को अपनी जगह प्रॉपर वे में बना के रखता है, इसके अलावा इसका और कोई पर्पज नहीं होता है। ठीक है, इसमें कंस्टेंट वही आता है कि इसमें हम
किसी भी लेंथ को मशीन नहीं कर सकते। एक्चुअली जो ग्राइंडिंग व्हील इसके अंदर डाला हुआ है, आपको इस फिगर में दिख रहा है, दैट ग्राइंडिंग व्हील हैज बीन माउंटेड ऑन दिस स्पिंडल, दैट स्पिंडल हैज अ पर्टिकुलर लेंथ, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मशीन अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दिस वर्कपीस ओनली। समझ आया नहीं आया? कि यस सर। जो सेंटरलेस ग्राइंडर हमें इसके पहले लिखा हुआ था, इसमें तो हम एक्सटर्नल सरफेस कितनी भी हो हम उसको मशीन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो मशीन होगी, लेंथ मशीन होगी, वो डिपेंडेंट होगी किसकी? इसके स्पिंडल के ऊपर, लेंथ स्पिंडल के लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होगी। यस। इसमें एक कंस्टेंट और आता है कि जब हम इंटरनल ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, सेंटर टाइप की कर रहे होते हैं, तो उस केस में यदि इस वर्कपीस के ऊपर दो अलग अलग डायमीटर बने हुए हैं, शायद इस फिगर से आपको समझ में आएगा, नहीं वो इस सेम फिगर यहाँ पे दे रखा है, इसके दो अलग अलग डायमीटर हैं। अभी आप थ्रू आउट लेंथ में एक ही डायमीटर दिख रहा है, लेकिन मान लो इस आधे लेंथ तक यहाँ पर डायमीटर कम है, इसके बाद डायमीटर बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ हाफ लेंथ। तो उस केस में ग्राइंडिंग व्हील इंटरनल ग्राइंडिंग से सक्सेसफुली मशीन नहीं कर पाता, मतलब सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग विल नॉट बी परफॉर्म इन दैट केस। बात समझ में नहीं आई? यदि Yes, sir. वर्कपीस की लेंथ में दो अलग अलग डायमीटर आ रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जो इंटरनल डायमीटर है वो है 100 mm का, और कुछ लेंथ के बाद वो डायमीटर हो जाता है 150 mm लेंथ का, तो अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग के थ्रू दोनों को एक साथ मशीन करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डायमीटर में चेंज आ गया है। Yes. ठीक है। Yes. फिर आती है सरफेस ग्राइंडिंग। तो सरफेस ग्राइंडिंग जो इस्तेमाल की जाती है, दैट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फ्लैट सरफेस, हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस। जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये मशीन एक प्रकार से मिलिंग मशीन है, क्योंकि यहाँ पे इस वर्कपीस को मूव करने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल मूव कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे दी जा सकती है। डेप्थ ऑफ कट वर्कपीस को ऊपर उठा के दी जा सकती है, या डेप्थ ऑफ कट देने के लिए हम यहाँ पे इस व्हील हेड को लोअर भी कर सकते हैं, नीचे भी मूव करा सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपकी मशीन किस टाइप की और किस प्रकार की वहाँ पे डेप्थ ऑफ कट आप वहाँ पर लेने जा रहे हो। लेकिन डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद फिर हम इसकी मशीनिंग करेंगे तो फ्लैट सरफेस यहाँ पे कुछ मशीन हो जाएगी। इसके बाद हम क्रॉस में मूव करेंगे, फिर से मशीन करा लेंगे, फिर क्रॉस में मूव करेंगे, फिर मशीन करा लेंगे। देखो इस फिगर में क्या दिख रहा है कि जो इस ग्राइंडिंग व्हील की फेज विड्थ है, दैट इज इक्वल टू आइदर इक्वल टू और मोर देन द फेज विड्थ ऑफ दिस वर्कपीस। तो इस केस में पूरी की पूरी वर्कपीस की जो लेंथ होगी एक सिंगल पास में वहां पे वो मशीन हो जाएगी। लेकिन यदि इस ग्राइंडिंग व्हील की फेज विड्थ सपोज 10 mm या 20 mm है, और वर्कपीस की जो फेज विड्थ है वो कितनी 100 mm है, तो सिंगल पास में वो उसको मशीन नहीं कर पाएगा, तो आपको मल्टीपल पासेस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ठीक है। और मशीन कैसी हो जाएगी? मिलिंग मशीन जैसी हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे दो प्रकार के सरफेस ग्राइंडर्स आते हैं, एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप और दूसरा कहलाता है वर्टिकल टेबल टाइप। अभी आपको ये दोनों जो फिगर दिखाए गए ये हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप सरफेस ग्राइंडर है, ठीक है। और दोनों के दोनों ग्राइंडर इस केस में कैसे हैं? ये हॉरिजॉन्टल ही हैं, वर्टिकल नहीं है, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल टेबल पर वर्टिकल मशीन भी ले सकते हैं, उसका जो एक्सिस रहेगा वर्टिकल हो जाएगा, उसके अबाउट ही रोटेट करता रहेगा, और कब शिफ्ट ग्राइंडिंग व्हील वहाँ पे इस्तेमाल होगा सरफेस को फिनिश करने के लिए। उसी प्रकार से वर्टिकल या रोटरी टेबल टाइप मशीन होती है, जिसमें वर्कपीस एक रोटरी टेबल के ऊपर माउंट होता है, वो टेबल रोटेट करती रहती है, उसके ऊपर लगी हुई वर्कपीस जो कि किसी फिक्सचर में मशीन मतलब माउंट किए गए हैं, वो वहाँ पर रोटेट करते रहते हैं। उसके ऊपर या तो हम जो ग्राइंडिंग व्हील लेंगे वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा या वो वर्टिकल पोजीशन में होगा। तो इस प्रकार से ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये दो प्रकार के आपको दिख रहे होते हैं, लेकिन कायदे से कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप, हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर ऐसा आता है उसका नाम, और रोटेट टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर, रोटेट टेबल टाइप वर्टिकल सरफेस ग्राइंडर, हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडिंग लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पे अनम्यूट करके हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हो,
क्योंकि बाकी एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए मुझे अभी, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। यस सर। ठीक है, तो मैं ये मीटिंग बंद करता हूँ यहाँ पे अभी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं एंड करता हूँ। सर इंटरनल में लिखा था सर कोनिकल को कर सकते हैं, तो सर फिर टेढ़ा होगा तो फिर सर डायमीटर चेंज होगा, फिर कैसे होगा सर? कॉनिकल नहीं, उस केस में कॉनिकल शेप का ग्राइंडर व्हील आपको लेना पड़ेगा। जो व्हील रहेगा ग्राइंडिंग अच्छा व्हील, ठीक है। ठीक है ना, वो उसी शेप का रहेगा, उसी शेप का ही रहेगा वहां पर। ओके ठीक है सर, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं सर बस। बंद करूं मीटिंग को मैं? यस सर। ओके।